Hello and welcome to join my class. Today we have a topic chapter 1 NCERT class 10th chemical reactions and chemical equations. टॉपिक का नाम है chemical reactions and chemical equations. Consider the following situations. Dear student, in daily life we experience different types of reaction. Chemical reactions are taking place around us. Let us see few examples. तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाए हुए हैं एग्जाम्पल में. वो है टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, बेकिंग ऑफ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल. इन चेंजेस को जब हम देखते हैं, इन चेंजेस में नए सब्सटेंसेस बनते हैं. Dear students, there are two types of changes. दो तरह के चेंजेस होते हैं. फिजिकल चेंज and chemical change. Here, two types of changes occur in nature: physical change and chemical change. Physical change is a change in physical properties like shape, state and size. तो हमने फिजिकल चेंज के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, हम आते हैं केमिकल चेंज की तरफ. केमिकल चेंज is change in chemical properties. Chemical change is change in chemical property when there is new formation of new substance. A change is said to be a chemical change when a new substance is formed. जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तब हम बोलते हैं कि क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है. इसके भी दो एग्जांपल हम देख सकते हैं. दो केमिकल रिएक्शन इसके एग्जांपल हैं जो हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. बर्निंग ऑफ पेपर एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. Photosynthesis is another chemical change. Let us see first burning of paper. What happens during burning of paper? There is a formation of carbon dioxide. Paper, carbon, burn in the presence of oxygen. It changes to carbon dioxide. Here, dear student, new substance is formed. This is known as a chemical reaction or chemical change. Again, and second example is burning of magnesium ribbon. Here, magnesium burn in the presence of oxygen. It changes into white powder, which is magnesium oxide. Here you can see it changes into white powder, magnesium oxide. Another kind of example is photosynthesis. Photosynthesis occur in chloroplast, in green cells, in green plant. It is very important reaction. It is a biochemical reaction. Here the carbon dioxide and water are inorganic compounds. They combine in the presence of sunlight within a chloroplast. It changes into a glucose C6H12O6, which further converted into carbohydrate and stored in a plant body. In this reaction oxygen is given out. इस रिएक्शन में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद यहाँ पर 6 molecules of water also liberated. Dear student, we can perform the activity of burning magnesium ribbon in school lab. We can take 2 centimeter of magnesium and hold it with the help of tongue and burn it by using spirit lamp. When we burn it, it changes into a white powder. This white powder is magnesium oxide. Another example and another reaction that can be performed in lab is using conical flask. This is conical flask, and take 50 ml of hydrochloric acid in a conical flask and
एड जिंक ग्रैन्यूल टू इट, और इसको ऊपर से इस तरह से कॉर्क ये लगा लेना है, कॉर्क लगा देना इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर में इसमें रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस को भी टेस्ट किया जा सकता है। इसके सामने अगर हम बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जो है जलती है ये गैस। और जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर है वो है जिंक प्लस HCl, ये कन्वर्ट होता है जिंक क्लोराइड में, ZnCl2। तो ये अब एक हमने यहाँ पर सीखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। Let us take another topic, characteristics of a chemical change. Dear students, chemical change has following characteristic: change in state. Here we can take example of reaction between zinc granule and dilute HCl. There is production of hydrogen gas. Hydrogen gas is evolved. Initially दो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, वहाँ पर क्या है, जिंक है वो सॉलिड है, HCl वो लिक्विड है, और यहाँ पर क्या निकल रही है, गैस। तो स्टेट चेंज में अकर। एंड ऑल्सो चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के लिए बेस्ट एग्जांपल है CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये ब्लू कलर का होता है। जब इसमें हम आयरन फिलिंग्स डालते हैं या आयरन नेल डालते हैं तो कुछ देर बाद ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तब इसमें बन जाता है फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट कलरलेस होता है और कॉपर जो है इसमें रेसिपिटेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं चेंज इन कलर होता है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर गैस इवॉल्व होती है इसके जिंक और HCl के बीच में जो रिएक्शन होता है। और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। इस रिएक्शन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ हीट रिलेटेड है चेंज इन टेम्परेचर से, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जैसे क्रैकर एक्सप्लोड होता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ लाइट। ये जब हम पेपर बर्न करते हैं या वुड बर्न करते हैं तो कार्बन बर्न होता है। ड्यूरिंग दैट heat is given out, reaction is exothermic. Dear student, exothermic reactions are those reaction in which heat is given out. उसी तरह से उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल रिएक्शंस की। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए chemical reaction. We use different types of symbol to represent a chemical reaction. On left side, the reactants are written. For example, you can see magnesium plus oxygen, ठीक है। And in middle, a headed arrow point towards the product, magnesium oxide. On right side, the products are written. This is how we can, this is a chemical equation. It is, dear student, a symbolic representation of a chemical reaction. Now coming to the next topic is how to write a chemical equation. भाई केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो once again I am telling you, symbolic representation of a chemical reaction is known as chemical equation. We use symbols of atoms. We use symbols of atom to write a chemical reaction. For example, different types of symbols are Fe for iron, H for hydrogen, C for carbon, etc. We mention states. हम स्टेट्स भी मेंशन करते हैं कि सब्सटेंस उस रिएक्शन में उस वक्त कौन सी स्टेट में रिएक्ट कर रहा है। L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस।
Conditions are also mentioned. In what condition the reaction is taking place? These conditions are at what temperature, at what pressure, and other conditions are also mentioned. Other conditions are also mentioned accordingly. How reaction is taking place. This is a reaction. For example, zinc solid, S for solid, H2SO4 liquid, ZnSO4 liquid, zinc sulfate, and H2 gas. So this is how we can write a chemical equation. Once again, chemical equation is symbolic representation of a chemical reaction. Moving to the next topic, dear student, how to write a balanced chemical equation. हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं यहाँ पर आप देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन. दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन. Word equation, let us examine this equation. If we check the number of particular atom on right side and on left side, let us see how it can be done. Zinc, ठीक है, जिंक और जिंक के बाद इसमें दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है सल्फर, और सल्फर के बाद यही इसमें जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है. तो अगर हम ऑक्सीजन चेक करें, ये हम राइट लिख लेते हैं, ये हम लेफ्ट लिख लेते हैं. तो राइट साइड इधर देखते हैं, राइट, चलो इसमें हम लेफ्ट पहले लिख लेते हैं क्योंकि लेफ्ट इस तरफ को है, लेफ्ट, और राइट इधर को लिख लेते हैं. तो लेफ्ट साइड में अगर हम चेक करेंगे, जिंक एटम है एक, इसको ठीक से लिखते हैं, और लेफ्ट और राइट. लेफ्ट साइड अगर हम देखेंगे, जिंक एटम एक है, हाइड्रोजन एटम 2 है, और सल्फर एटम एक है, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 है. अब हम राइट साइड आते हैं. राइट साइड में जिंक एटम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन एटम देखेंगे तो हम 4 हैं, और सल्फर एटम देखेंगे तो हम 1 है. तो यहाँ से हमको ये पता लगता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑन राइट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट साइड, दोनों बराबर हैं. तो इस ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. डियर स्टूडेंट, जिस इक्वेशन में राइट और लेफ्ट साइड जो है नंबर ऑफ एटम बराबर हों, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे. यहाँ एक इक्वेशन आपको दिखाई जा रही है, इसमें यहाँ है आयरन, ये वाटर है, और ये आयरन ऑक्साइड है, ऑक्साइड, और इधर क्या है, हाइड्रोजन. अब इसमें भी हम देख लेते हैं, इधर को हम लेफ्ट लिखते हैं, इधर को क्या लिखते हैं, हम राइट लिखते हैं. लेफ्ट साइड में आयरन कितना है, 1, राइट साइड में आयरन कितने हैं, 3, ठीक है, ये F ही है. और अगर हम इसमें हाइड्रोजन को चेक करें, हाइड्रोजन राइट साइड में 2 हैं, और लेफ्ट साइड में देखेंगे, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन्स हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं. अब अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, और राइट साइड में कितने हैं, 4 है. तो अब हमने इसको बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, ठीक है. तो यहाँ हम 3 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे इधर को, आयरन को, ये कितने हो जाएंगे, 3 प्लस,
अब इसमें ऑक्सीजन हो गए हैं 4 ऑक्सीजन के लिए हमारे को वाटर को यहाँ पर 4 से अगर हम 4H2O लिख लेते हैं तो इसमें क्या होगा, वाटर कितने, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8। 4 × 2 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। उसके बाद Fe3O4 ये बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ आयरन कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन अब यहाँ अनबैलेंस्ड चीज क्या है, हाइड्रोजन। 4 2 8, तो 8 हाइड्रोजन को यहाँ हम क्या करेंगे, अगर आप ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर देखें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसमें यहाँ 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ के, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8। अब अगर हम दोबारा चेक करेंगे लेफ्ट और राइट, तो हम देखेंगे लेफ्ट साइड आयरन कितने हैं, 3, राइट साइड भी आयरन कितना है, 3 है, ठीक है। और आयरन के बाद हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 8, 4 2 यहाँ भी कितने हैं, 8, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीजन एटम देखेंगे, ऑक्सीजन एटम यहाँ कितने हैं, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर भी कितने हैं, O4। तो नाउ दिस इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड। आप यहाँ से आइडिया लेके इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो आई होप आपने कोई ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हैव ए नाइस टाइम।